Good morning. Happy Onam to all of you. Now, just 12 days are left for our examination. Now, this is the time when you can make it or break it. So, if you continue to remain focused, continue to remain on the point, you will definitely win the battle. And this time, if you win, you are going to get job very soon. Because in RRB, if result is out by 31st December, the appointments may start from January, February onwards. So it is a great opportunity. Don't allow it to slip away from your hands. So next 12 days, don't overburden yourself, but plan effectively. Plan effectively means you should attempt 6 mock tests during next 12 days on alternate basis. That means if you have attempted a mock test yesterday, there is no need to attempt mock test today. You will be attempting it tomorrow. But you have not attempted any mock test yesterday, you will attempt one mock test today. Which mock test? I have suggested you an excellent mock test. Link is available in description and comment column. Thousands of our subscribers are already using it, showing improvement on day-to-day basis. You should use it. If you are not taken the subscription of this mock test till now, I will advise you to subscribe today, take annual plan or only RRB plan. This is your choice. Because if you take annual plan, it is highly subsidized because in 599 rupees, you get access for entire year. A single test may cost you higher, and if you take in pieces, sometime it becomes costly for you. That's why I always advise take annual plan, because we have to appear in number of exams to get success. Some people may get the success in the first examination itself, but some people may get success in IBPS, some PO or IBPS clerk or IBPS SO or SBI or in RRB. So there are large number of exams are lined up. So if we take a plan that gives us access for more examination, it becomes cost effective. This is your choice. Then after taking this mock test, always go to the solution part of it. Very well explained solution is there that will show you where you are lacking. Then go to analysis. Analysis will give you ready-made analysis. What are your weak areas? What are your strong areas? Concentrate on your weak areas. Jot down the topics, the type of question which you could not attempt. Say these are the questions relating to profit and loss. Maybe the question related to average. Maybe related to time and work. Maybe related to streams. Because many people may be weak in arithmetic because they have read the arithmetic 5 years, 10 years, 15 years ago. They have forgotten it. So what is the best way? Again, read the textbook of school, NCERT books, CBSE book. Understand the concept once again. You will not miss in the main examination. Similarly, some people may not be very clear how to solve a particular type of reasoning questions. Merely by reattempting, you will not learn the technique. You must go through the Google search, type the topic, write good book. It will land you in a good source. Understand the concept, how these type of reasoning questions are handled. Conceptual clarity is the essence of success because they're looking for conceptually clear candidates. So always develop concepts. Frequent attempt of mock test is not going to help you. It should not be overused. Mock test should be used, but once on alternate day. Some people are doing 5 mock tests in a day, 10 mock tests in a day. It is only giving you botheration. It is only giving you fatigue. You are getting tired before examination. So your performance in exam may be affected. Attempt 1 mock test, then focus on weak areas and give a gap of 1 day. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आखिरी 12 दिन
कुछ लोग कहते हैं सर आप डरा देते हो, दिन बता देते हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पर ये अलर्ट है। देखो, अगर हमें अपना लक्ष्य नहीं पता तो हम कैसे पहुंचेंगे, और हमें अगर अपना लक्ष्य पहुंचे तो हम जरूर पहुंचेंगे। तो ये जो वेकअप कॉल है, मेरी वीडियोस है, ये आपको सिर्फ एक अच्छे रास्ते पे चलाती है। आपको भी पता है ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, पर जब आप सुनते हैं तो जो आप भूल चुके हैं फिर लग जाते हैं। और यही लोग कहते हैं कि सर आपके चैनल का यही एडवांटेज है, आप सवेरे सवेरे हमें जगा देते हो, हमें फिर रास्ते पे लगा देते हो, और हम तो चल पड़ते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आज आपने क्या करना है, 12 दिन बचे हैं, 6 मॉक टेस्ट आपका लक्ष्य है इन 12 दिन में करना। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं करने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक टेस्ट करने। जिन लोगों ने कल मॉक टेस्ट कर लिया है वो आज मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, जिन्होंने कल नहीं किया है वो आज मॉक टेस्ट करेंगे। अब प्रश्न है कौन सा मॉक टेस्ट। मैंने आपको एक बेहतरीन मॉक टेस्ट सजेस्ट किया हुआ है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दे दिया। हजारों लोगों ने मेरी सलाह मान के ये मॉक टेस्ट ले लिया है और उनको फ़ायदा भी हो रहा है, डेली उनमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। ये इम्प्रूवमेंट वो मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं। इन टर्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल की वॉल पे लगा रहा हूँ। उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिल रही है कि मेरा नाम सर के यूट्यूब चैनल पे आ गया। आपको भी इंकरेजमेंट मिल रही है, देखो सर ने जो बात बताई थी उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आपने यदि अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिया है, इसको आज ले लीजिए। चाहे एनुअल प्लान ले लें, उससे आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। 599 में 1 साल तक का आपको मिल गया। सिर्फ 50 रुपये महीने खर्च करके आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट मिल गया, 2 रुपये पर डे से भी कम। और अगर आपने स्पेसिफिक लेना है कि चलो अभी सिर्फ आरआरबी ट्राई करना है, वो भी अवेलेबल है, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि आप अलग अलग टेस्ट के अगर लेते हैं तो फिर कुल मिला के आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ एनुअल ले लें, क्योंकि होता क्या कि एक एग्ज़ाम हम देते हैं फिर दूसरा भी हम देंगे ही, क्योंकि रिजल्ट तो आता नहीं है, तो कोई एग्ज़ाम तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम आरआरबी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम आईबीपीएस पीओ भी देंगे, हम आईबीपीएस क्लर्क भी देंगे, एसबीआई का भी देंगे, आरबीआई का भी देंगे। जब हमने सब एग्ज़ाम देने ही हैं तो अगर हम उसका एक पैकेज ले लेते हैं तो हमें सस्ता पड़ जाता है। इसको आप कर लीजिए। करने के बाद अब करना क्या है, आपने आज 1 घंटा लगाया, एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद इसमें देखिए कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, सोल्यूशन देख लीजिए, उसका एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस में इसमें आपका टाइम बचा देता है ये मॉक टेस्ट। एनालिसिस करके खुद ही आपको बता देता है कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ आप स्ट्रांग हैं। तो आपको पता लग गया मैं यहाँ कमज़ोर हूँ। मान लो मुझे पता लग गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे पता लग गया परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट गलत हो गया, मेरा टाइम एंड वर्क गलत हो गया। इसका मतलब ये टॉपिक मैं भूल गया हूँ। देखो बचपन में पढ़ा है आपने ये, और जब तो फिर हम क्या होता है उस किताब को तो दोबारा पढ़ते नहीं है। अगर 8वीं में कोई किताब पढ़ी है, क्या आपने दोबारा पढ़ी है? वो नहीं पढ़ी ना। आप पढ़िए, जो टॉपिक जिस क्लास में है वो जाके दोबारा पढ़िए। अब कईयों को ये होता है कि सर किताब कहाँ से मिलेगी, कहाँ जाएं ढूंढने के लिए। कुछ नहीं करना, अब तो टेक्नोलॉजी है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है, काम खत्म, वहाँ से पढ़ लीजिए। आपको इतना भी नहीं करना, और भी आसान तरीका है। टॉपिक का नाम लिखिए प्लस एनसीईआरटी बुक लिखिए, वो आपको सीधा उस पीडीएफ पे लैंड कर देगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, सिर्फ चैप्टर ही मिल जाएगा आपको, पूरी किताब भी नहीं मिलेगी। और आसान हो गया काम। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो हम जहाँ पर फंडामेंटल चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ से जितनी हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। दिन में आपने 2 कंसेप्ट भी अपने क्लियर कर लिए, 2 नंबर और आ गए आपके। कितने नंबर से फेल होते हैं लोग? कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से। आप देख लीजिए, अगर आपने पहले एग्जाम दिया अपना ही देख लीजिए, आप खुद ही कहेंगे कि सर पिछली बार मैं 1.5 नंबर से रह गया था सिर्फ। समझ रहे हैं? तो यही हमें 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ग्रैब करने हैं। ये नहीं है कि आप मतलब नज़दीक नहीं हो सक्सेस के, पर रस्सी के नज़दीक पहुंच गए, टच नहीं कर पा रहे रस्सी। और ये जो कमी है ये परमानेंट है, क्योंकि आपने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। वो हर एग्ज़ाम में वहीं जाके अटक जाते हो। तो अगर इसको आप दूर कर लोगे तो इस बार नहीं अटकोगे, बल्कि इस बार आप क्या कहोगे कि सर मेरे को चूज़ करना है, मैं
IBPS-PO में जाऊं कि RRB-PO में जाऊं कि LIC में जाऊं, मेरे पास तो 3 जॉब है। आपने देखा होगा कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ये बातें लिखते हैं कि सर ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, अब किस में जाऊं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमारा एक लेवल अचीव हो जाता है तो हम सारे कंपटीशन पार कर पाते हैं। जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं हमारा कोई भी कंपटीशन पास नहीं होता। तो हमें अपने लेवल को इम्प्रूव करना है और वो एक मॉक टेस्ट उसका सहारा है। वो हमारी कमियां ढूंढ ढूंढ के देता है, फिर हम उन कमियों वाले इलाके में पढ़ाई करते हैं और हमारा लेवल इम्प्रूव होता जाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।